Good afternoon, everyone. Here is Professor Sandeep Reddy. Now, before the starting of today's sessions, I would like to say a few lines which is given by हरवंश बच्चन जी. असल असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो. क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. So friends, I would like to introduce today's guest of honor, Akruti Patel. She is former student of Reddy Institute of Commerce, as well as she has completed her graduation from Ramsey Thakur College, Kharghar, and she was the past former student of Reddy Institute of Commerce, and as well as she has completed his postgraduate diploma, Global Business Management from Centennial College, Canada, and right now she's working with. Before that, I would like to say her achievements. Achieved first rank in TYPMS from Ramsey Thakur College of Commerce and Science, and certificate course in Advanced Accounting from the Disha Computer, and short courses Discovering Your Strength, Managing Organizational Change for the Managers, and E-commerce Fundamentals, Job Hunters, Networking, and Masterclass. See, these are the achievement of Akruti Patel. Right now, she's working in as the administrative assistant in Durupent Industries Limited, Canada. I would like to say about Akruti Patel. She was the former student of Reddy Institute of Commerce, and she got O grade in the respective subject like that, Organization of Commerce and International Finance, and she was the topper in Ramsey Thakur College, and she was very excited and committed student. But I'm very proudly say to that she is with us right now, and she's guiding to us what are the career visions in Canada, because most of the students, they have a dream to learn and earn in the abroad, but due to reason of lack of knowledge, they cannot fulfill their dreams. So fulfill of that dream, so Akruti Patel will help us and she will guide us how to prepare and how to prepare for the learn in Canada and earn in Canada. So I would like to call Akruti Patel to take further in charge. Yeah, Akruti Patel ji, please. Yes, sir. Thank you so much for having me here. Yeah, sure. And I'm very excited to meet all of you. Long time to see you, sir. And before These are all our students, as well as our one of the sir is also there, Daigude sir. that's great. सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक प्रेजेंटेशन आप लोग के सामने रखूँगी और उसके बाद ही आप मतलब सारे जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो आप नोट डाउन करके आफ्टर द प्रेजेंटेशन पूछे तो मैं उसका क्लियरली आपको आंसर रिप्लाई दे पाऊँगी. ओके, सो ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे सर ने कहा सेम चीज़ होती है, मुझे भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मुझे भी किसी ने गाइड किया, तभी ही मैं यहाँ पे आज अपना करियर फोकस कर पा रही हूँ. सो आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन या मेक अ करियर इन कैनेडा. ये एक ड्रीम बन चुका है आजकल हर एक स्टूडेंट का. इफ़ यू हैव अ ड्रीम टू सेटल अब्रॉड, कैनेडा इज़ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ. And in any country you can go. These steps will help you to reach out to any country abroad. Okay, the first step is to make the decision. Decision taking is the toughest thing we do, and to stick to the decision. अगर हम कुछ सोचते हैं तो उस पर काम करने के लिए हमें उस पर स्टिक होना ही चाहिए, अदरवाइज हम अपना गोल अचीव कर ही नहीं पाएंगे. फिर आफ्टर टेकिंग द डिसीजन, स्टेप 2 इज फाइंड आउट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट. हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें क्या करना अच्छा लगता है. जैसे इन विच सब्जेक्ट यू आर स्कोरिंग मोर, दैट माइट बी योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. फिर कौन सी चीज़ करने में आपको बोर नहीं होता है. इफ़ यू आर गुड इन अकाउंटिंग and you don't get bored in accounting, you can make career in accounting. Then if even if in painting, art also you can decide. Then finance,
anything, even in science as well, then make a research on that courses, because यहाँ पे हर एक इंटरेस्ट के लिए, हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग कोर्सेज को नाम दिया गया है। जैसे कि हम लेते हैं बिजनेस मैनेजमेंट का, तो ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ये अलग अलग कोर्सेज का नाम दिया गया है। तो आप अपने इंटरेस्ट के रिलेटेड कोर्स को सर्च करें, ये है ये भी इम्पोर्टेंट थिंग है। और साथ ही साथ आप ये थर्ड स्टेप है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। हमें हमारी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसकी टेस्ट हमें देनी पड़ती है। यहाँ पे 3 टेस्ट कंसिडर की जाती है। फर्स्ट है आइल्स। आइल्स के बारे में आपको मैं ब्रीफली बताऊंगी। फिर है टोफेल टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, एंड फ्रेंच। फ्रेंच बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमने इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई की है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज takes much more time, and it's quite difficult, not impossible. If you want, you can do it. Let's focus on to the IELTS, because it's the most preferable test for all the students. इसमें आते हैं 4 मॉड्यूल्स: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। हर एक मॉड्यूल का अलग अलग टेक्निक होती है। हमें इंग्लिश सब लोग इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर इंग्लिश में ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर, वोकेबलरी, वो सब टेक्निक्स समझने की ज़रूरत है। तो ये टेस्ट के लिए आपको ये 4 मॉड्यूल्स में ध्यान देना होगा। अब इसमें इसमें भी 2 चॉइस है, एकेडमिक आइल्ट्स लेनी है या जनरल आइल्ट्स लेनी है। तो फॉर स्टूडेंट, academic IELTS is more preferable. Then more two choices: paper based and computer based. Computer based you can take if you have a good typing speed, good technological knowledge, and paper based is friendly for everyone. It's not difficult to paper based and computer based, both are similar like that, just in the technology and the paper, that's it. There are 2 institutions taking these tests: British Council and the IDP Education. You can choose either of these, and you can visit website for more information. Then अभी यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि हम स्टेप 2 और स्टेप 3 को साथ ही साथ ले सकते हैं। हम हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम आइल्स के प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। Then the step 4, सर्च फॉर द कॉलेज। आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, कोर्स फाइंड आउट किया, अभी वो कोर्स कौन से कॉलेज में अवेलेबल है वो सर्च करना है। अगर आपकी कोई ऐसी प्रेफरेंस नहीं है कि मुझे पर्टिकुलर यही सिटी में जाना है या यही कॉलेज में जाना है, तो ये सबसे बेस्ट थिंग है। मैंने खुद ऐसे ही किया था कि कोर्स सिलेक्ट करने के बाद कॉलेज में देखा, 4-5 कॉलेज में फॉर द सेम कोर्स अप्लाई किया। जिस कॉलेज में सबसे पहले हो गया, उस कॉलेज में मैं आ गई यहाँ पर। ये सबसे बेस्ट टाइम सेविंग थिंग है। देन मेक एन एप्लीकेशन। कॉलेज की वेबसाइट पे एप्लीकेशन की सारी इंस्ट्रक्शंस दी होती है, तो उसके गाइडेंस के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन करनी है। वेट फॉर द ऑफर लेटर। एप्लीकेशन करने के बाद कोई हर एक कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई कॉलेज 1 महीने में एप्लीकेशन देती है, कोई 1 हफ्ते में देती है, कोई 2 हफ्ते में, कोई 2 महीने में। जैसे ही ऑफर लेटर आता है, फिर उसमें एडमिशन कंफर्म करने के लिए क्या स्टेप्स है। कोई कॉलेज पहले 1 साल की फीस जमा करने को बोलती है, और कोई कॉलेज बोलती है पहले सिर्फ डिपॉजिट भर दो कंफर्मेशन के लिए। देन कंफर्म द एडमिशन। देन स्टेप 5 इज यहाँ पे आसपास, आपके कॉलेज के आसपास कौन सी बैंक प्रेफरेबल है स्टूडेंट के लिए। मेरी कॉलेज के लिए यहाँ नज़दीक ही स्कॉशिया बैंक है। मोस्टली सारे स्टूडेंट्स स्कॉशिया बैंक ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज उसमें स्टूडेंट अकाउंट ओपन करना बहुत ज़्यादा आसान है। फिर उसमें GIC हमें जमा करनी होती है, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये इसलिए होता है कि अगर हमारे पास 1 साल तक जॉब नहीं है, पार्ट टाइम जॉब, तो हम GIC के ज़रिए हमारी फ़ीस, हमारा रहने का खर्चा 1 साल तक का निकाल सकते हैं। इसलिए, और इसमें हमें हर महीने थोड़े थोड़े अमाउंट अपने अकाउंट में आ जाती है GIC से, जिससे हम हमारा गुजारा चला सकते हैं, तो ताकि 1 साल तक की लाइफ हमारी डिफ़िकल्ट ना हो। Then the 6th application is visa application.
इंडिया VFS में जाके बस वीज़ा एप्लीकेशन करना है। इसका मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊंगी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस का। पहले इसमें क्या क्या इंक्लूड है ये हम देख रहे हैं, एंड देन फ्लाई टू कनाडा। अभी यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि स्टेप 2 और 3 हम हमारे हिसाब से अपने आप ही कर सकते हैं। आगे के स्टेप भी हम खुद कर सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर पर्सन और एनी अदर इंस्टीट्यूट और एनी अदर कंसल्टेंसी। बट आई विल गाइड यू, आई विल एडवाइज यू टू सिलेक्ट अ कंसल्टेंसी सर्विसेज। कंसल्टेंसी इन मुंबई में बहुत सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज है जो हमसे एक पैसा नहीं लेती, हमें पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस करवा देती है। इनफैक्ट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए भी वो लोग ही ये सब कुछ करवाते हैं, जिससे हमें ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती। वो लोग के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नॉलेज है। और अगर आपको किसी भी चीज़ में एक्सपीरियंस या मतलब डीपली नॉलेज की ज़रूरत है तो आई विल बी हियर टू गाइड यू। ओके। और सब वो कंसल्टेंसी हमसे 1 रुपये नहीं लेती, उनका कोलैबोरेशन होता है सीधा कॉलेज से। कुछ कंसल्टेंसीज मिनिमम चार्ज लेंगी, कुछ ज़ीरो मनी, और कुछ कॉलेज से कोलैबोरेशन नहीं होगा तो वो हमसे जो होता है उनका कमीशन वो चार्ज करती है, बट ज़्यादातर चार्ज नहीं करती है। मेरा ज़ीरो कंसल्टेंसी सर्विस में हुआ है, मैंने 1 रुपये नहीं दिया था कंसल्टेंसी सर्विस को। तो हमारा काम तो बैठे बैठे ही हो गया। फिर आता है कि हमें इतनी सारी फीस हम कैसे जमा करेंगे। इसमें 2 ऑप्शंस है, पे बाय ऑन योर ओन, और दूसरा है जो ज़्यादा कन्वीनियंट है, टेक एन एजुकेशन लोन फ्रॉम बैंक। एजुकेशन लोन ज़्यादा प्रेफरेबल इसलिए है क्योंकि उसमें तुरंत ही हमारा जो भी है इंस्टॉलमेंट्स वो तुरंत स्टार्ट नहीं होता है। आफ्टर योर एजुकेशन, आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आफ्टर 1 year of job searching period, और इफ़ यू गेट द जॉब आफ्टर 6 month मोरेटोरियम पीरियड स्टार्ट, उसके बाद आपका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होता है, जिससे आप आसानी से धीरे धीरे करके अपना बैंक का लोन फुलफिल कर सकते हो, पे बैक कर सकते हो। यस, द सेकंड थिंग इज़ कि आप स्टडी करते करते आपको 20 आवर्स वर्क करने की परमिशन है एज अ पार्ट टाइम वर्कर। स्टडी परमिट में वो इंक्लूड होता है मैक्सिमम टाइम, तो उसमें वो 20 आवर्स में आप पूरे महीने का खर्चा निकाल सकते हो। 20 आवर्स पर वीक मतलब 4 वीक में 80 आवर्स। इवन इफ यू आर वर्किंग ऑन द बेसिक पे एज अ स्टूडेंट यू कैन फुलफिल योर ओन थिंग्स। और यहाँ पे कैश जॉब भी बहुत मिलती है, और हम एज अ वॉलंटियर भी एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। And thank you so much, Reddy sir, for having me here again. इतनी बड़ी opportunity for the first time. I was quite nervous, as you can see. And actually, thank you for all your Most welcome. motivation. जब क्लास में थी तभी भी आपने बहुत मोटिवेट किया है. Now I'm not in your class. I'm a former student, but still you are helping a lot. Thank you so much. I always try to do better for the student. अपना एक ही ऑब्जेक्टिव है, स्टूडेंट्स का हमेशा बेटरमेंट चाहते हैं। जी बिल्कुल। आज सर की और मेरी बात हो रही थी तो सर ने यही कहा कि हम किसी एक स्टूडेंट को भी इसमें हेल्प कर पाते हैं उनका करियर बनाने में तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। दैट इज आवर रिवॉर्ड्स। ठीक है आकृति जी, अभी ऑडियंस मतलब स्टूडेंट्स के पॉइंट से कुछ अगर कुछ क्वेश्चंस होते तो हम उसको अभी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इज देयर एनीवन क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू द प्रोसीजर एंड ऑल दैट? आपको अगर किसी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। You can raise your hand or you can type in the chat box, whatever is good for you. Otherwise you can unmute Akriti ji, that will be feel comfortable to directly talk. Yeah, they can unmute by themselves. Yeah, sure. Yes. Anyone? Anyone? Any doubts, any queries? ट्रस्ट मी, ये सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है, बाकी यहाँ आने का प्रोसेस इतना डिफिकल्ट नहीं है। आकृति जी हेलो आकृति जी, मेरा एक यस सवाल है। जी सर।
सवाल ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट है नॉर्मल, हम्म जिसको कुछ मालूम ही नहीं, हम्म और उस आपका सेमिनार अटेंड करने के बाद उसको आइडिया आ गया कैसा जाना है वहां पर, हम्म बट उसका कोई उधर दोस्त नहीं है, रेफरेंस नहीं है, कोई पहचान वाला नहीं है, फिर वो क्या कर सकता है? जी सर, बिल्कुल। उस यहाँ पर कीजीजी करके एक वेबसाइट है जहाँ से हम शेयर्ड अपार्टमेंट्स या शेयर्ड हाउसेस हम सर्च कर सकते हैं। इंडिया बैठे बैठे ही हमारे यहाँ रहने का सारा सेटिंग हो जाता है। और ओके। फेसबुक पे भी बहुत सारे ग्रुप्स है, इंडियंस इन टोरंटो करके, तो वो उसमें भी हम ज्वाइन होके हमारा पोस्ट डाल सकते हैं कि लुकिंग फॉर अकोमोडेशन इन सो एंड सो एरिया नियर दिस कॉलेज। And if even if अच्छा। it is not happening, you can contact me. I will guide you for that as well. ओके, थैंक यू आकृति। No problem, sir. अभी एक मेरा सवाल है मैडम जी कि सर। अभी बेसिक में देखा जाए तो अगर कुछ मान लो अगर कुछ स्टूडेंट्स कैसे होते हैं ना, दे कैन नॉट अफोर्ड टू स्टडी इन अब्रॉड, जैसे कि आपने कहा कि एजुकेशन लोन भी होता है, राइट, या तो फिर हम वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस भी करने के बाद वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो जी इनिशियल लेवल पे अगर कोई भी स्टूडेंट्स होता है तो वहाँ पे आने के लिए तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर अमाउंट लगता होगा ना, एग्जैक्टली जैसे कि 5 लाख 2 लाख, तो ऐसा कितना अमाउंट मिनिमम क्राइटेरिया कि आपके पास होना ही होना है? आफ्टर पासिंग द लोन अगर 2 लाख भी है तो आई थिंक इट इज़ इनफ। अगर आप में उतना डेडिकेशन है तो हो जाता है। यहाँ पे कई अगर एजुकेशन स्टूडेंट्स है। लोन नहीं हो पाता है तो? एजुकेशन लोन नहीं होता है तो पर सेमेस्टर फीस होती है अराउंड $8,000, $7 to $8,000, जो कि है 3 to 4 लाख रुपीज़। तो हमें कुछ मेरी कॉलेज का ये रूल था कि हमें 1 साल की मतलब 2 सेमेस्टर की फीस पहले ही पे करनी थी, फिर वो हम हमारे जेब से करें या फिर बैंक लोन से डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवा दें। इसलिए बैंक लोन ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि एक साथ इतने सारे 8 to 9 लाख रुपीज़ अरेंज करना पॉसिबल बहुत मुश्किल है। ओके, एनीवन? Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good How are afternoon, you? everyone. Fine, fine. Thank you, Reddy sir, for organizing such wonderful program. वेलकम सर। Hemant sir, Akruti, good afternoon, everyone. Students. तो मुझे ये क्वेश्चन है कि आकृति से पूछना है कि कोरोना है क्या उधर? यहाँ पे काफी कम हो चुका है एक्चुअली। अभी अच्छा। हर एक जगह ओपन हो चुकी है, टूरिस्ट वगैरह सब, मतलब हम लोग भी ऐसे ही घूमते हैं बाहर, मास्क पहनते हैं, लेकिन जहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे ज्यादातर लोग मास्क नहीं पहनते। ओके ओके। मोस्टली और वैक्सीनेटेड हियर। फेयर का हम्म चार्जेस कितना रहता है, फेयर ट्रैवल यहाँ से कनाडा? वहाँ से यहाँ का अभी तो बहुत ज़्यादा हो चुका है कोरोना की वजह से। कोई कोई लोग 50,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख। तो ये सिचुएशन में भी हम अगर एडवांस में बुकिंग करते हैं तो 35-40,000 में भी हो सकता है। थैंक यू। नंबर शेयर करो। जी सर। आदित्य यू कैन आस्क बेटा डायरेक्टली। सर मैंने चैट बॉक्स में डाला है, मैं भी बोलूं क्या फिर? हाँ बोलो बेटा, बिंदास बोलो। अपनी मैडम है, अपनी हेलो मैम, माय नेम इज आदित्य। तो मेरा Aditya. ये क्वेश्चन था कि so can you recommend some courses which are available in Canada? I am in second year, I am studying BMS from Pillage. तो अभी मैं BMS कर रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए स्पेसिफिक क्या कोर्सेज हो सकते हैं कनाडा में? मैंने भी BMS ही किया है। सो यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स है, जो मैंने एग्जांपल्स दिए पहले, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट, फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट रिलेटेड भी काफ़ी सारे कोर्सेस है। तो वो कोर्सेस आप कर सकते हो, और अगर आपको मास्टर्स करना है तो यू कैन डू MMS एज वेल। If you don't have any problem with money, you can I will recommend you to choose masters. ओके। Yeah, that will save मास्टर्स के कोर्स कितने इयर्स के होते हैं वहाँ पे? मतलब 2 2 to years? 3 years, depend on the course and the university. ओके, तो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट जो आपने कोर्स बताया वो मास्टर्स है? वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स है, नॉट मास्टर डिग्री। नॉट मास्टर। ओके। तो आपने भी वही किया है, इंटरनेशनल मैंने बिजनेस मैनेजमेंट? ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट किया है।
ओके, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्लोबल में 90% सिलेबस सेम होता है। हमारे क्लासेस भी कभी कभी साथ में हुआ करते थे, इंटरनेशनल बिजनेस और ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट के। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट में कुछ अकाउंट्स का वगैरह ज़्यादा होता है, कभी कभी मार्केटिंग का ज़्यादा नहीं है कुछ डिफरेंस। मतलब पर्सनली मैंने ओके, ओके, कुछ डिफरेंस फाइंड नहीं किया। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। Anyone? और किसी को कुछ डाउट Yes, क्वेश्चन sir. है पूछने? यस हाँ, यस सर, प्लीज। संदीप सर, मेरा क्वेश्चन है, सर, क्वेश्चन एक्चुअली अप्रिसिएशन है कि ऐसे वेबिनार आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करो हम लोगों के लिए, ताकि हमको Thank भी you, sir. नॉलेज मिल सके, हमारे बच्चों को भी नॉलेज मिल सके। और अपने Sure, जो आज sir. का वेबिनार रखा था आकृति जी का, उसने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। आई होप सब बच्चों को इसका बेनिफिट होगा। मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट हुआ है और मैं ये मैसेज औरों को भी पास करने वाला हूँ। सो थैंक यू Thanks, सर sir. वेरी मच। ऑल माय Thanks a lot, sir. ब्लेसिंग्स विद एंड आकृति जी आल्सो। ग्रेट सर, Thank you थैंक very यू much, sir. सो Thank you मच। very much, sir. थैंक यू सो मच। And Akriti ji, और एक I think so someone is yes, thank you. और एक क्वेश्चन है यहाँ पे Yes, कि sir. how do you feel and what is the comparison? Basically, I don't want to compare between the education system, but Yeah. is there any difference between the education system of Indian education system and Yes. Canadian education system? यस, इंडिया से पढ़ाई करके आने के बाद मुझे ये फील हुआ कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो हमने बचपन से सीखा है कि लाठी मारेंगे तो नॉलेज आएगा, वो बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे याद अच्छा। रहता है, यहाँ पे लोगों को याद नहीं रहता है इतना, इसलिए हर एक चीज़ को लिख के वो लोग याद रखते हैं। और हमें Okay. पढ़ाई में भी असाइनमेंट्स हो या क्विज हो, हर एक चीज़ में वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है इंडिया से आके। Okay. यहाँ पे ज़्यादातर प्रैक्टिकल असाइनमेंट और क्विज बेस्ड होते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट ले लेते हैं अकाउंटिंग मैनेजमेंट, उसमें 100% हमें 4 महीने में कंप्लीट करने होते हैं। तो डिपेंड ऑन प्रोफेसर, कोई 20% का असाइनमेंट, 20% की क्विज प्रेजेंटेशन ऐसे पार्ट करता है, कोई 10% असाइनमेंट और बाकी वेटेज क्विज को देता है। इसलिए हर एक प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम लेने का अलग अलग तरीका होता है और सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोफेसर प्रोवाइड करते हैं। Okay. तो जैसे कि आपने जैसे कनाडा में एंट्री की आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, सो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू फेस्ड इन कनाडा? Like that, is Two there any language semesters, barriers or? 2 semesters were very difficult for me to adapt this thing because as a commerce student हम theoretical based ज़्यादा involved थे। तो हमें वही बड़े बड़े लेसन्स पढ़ना, उसी के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स, वो उसमें ही हमारा ज़्यादा दिमाग चलता था। असाइनमेंट अचानक से आ गई, वो होता है प्रैक्टिकल की किसी कंपनी का एग्जाम्पल दे दिया, उसके ऊपर हमें रिसर्च करके रिपोर्ट रेडी करने हैं, वो सब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहे हैं मेरे लिए। देन आफ्टर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अचानक मोटिवेशन आया एंड देन फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर आई स्टार्टेड स्कोरिंग वेरी वेल। Okay. And what about your experience with RIC? RIC experience was very fun and knowledgeable as well. सर का सपोर्ट बहुत अच्छा था, वहाँ पे हम मस्ती कर सकते थे, पढ़ाई कर सकते थे, हर एक चीज़ में। सबसे इम्पोर्टेंट तो आप लोग हार्ड वर्कर थे। इट्स यू गेट ऑलरेडी रिवॉर्ड्स। जो आपने मेहनत किया उसी का रिवॉर्ड आपको मिला है। मुझे तो पढ़ाई का शौक है, वो बात तो अलग है, लेकिन पढ़ाने वाले के ऊपर भी डिपेंड होता है कि किस तरह से हम क्लास में इन्वॉल्व रहते हैं, किस तरह से हमारा इंटरेस्ट आता है। और लास्ट एट द लास्ट कि व्हाट डू यू पास द मैसेज टू द स्टूडेंट्स कि आप क्या मैसेज पास करोगे लास्ट में कि मतलब स्टूडेंट्स को? मैसेज में ये पास ऑन करना चाहूँगी कि जो मेरा फर्स्ट स्टेप मैंने स्लाइड में दिखाया कि टेक अ डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम हर एक चीज़ होनी ज़रूरी है। यू गाइज आर इन 11th और 12th राइट सर? तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स आफ्टर 11th आए, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड भी आए हैं और काफ़ी आफ्टर ग्रेजुएशन भी आए हैं। तो it doesn't make any difference if you come after 12th or after graduation. बस इतना है कि आपको डेडिकेटेड रहना है, वर्क हार्ड, यू विल गेट द रिटर्न। अगर कोई गोल अचीव नहीं होता है, मेरा बस यही मानना है कि सपने बड़े बड़े देखो
और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करो, लेकिन कभी अगर फेलियर मिलती है तो निराश ना होके वापस से शुरुआत करो। थैंक यू। और किसी का कुछ आपका डाउट है, किसी को कुछ पूछना चाहते हैं आप, कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th के भी हैं, अगर उनके मन में अगर कुछ डाउट्स होता है कि सर मुझे ये करना है बट नो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड किया हाउ टू टेक स्टेप्स, तो अगर कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं तो यू कैन आस्क डायरेक्टली। यस, फील फ्री टू आस्क, डोंट वरी। रोहन, इज एनी डाउट बेटा? नो सर। तो आई होप कि मतलब अभी किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है, इफ यू आर फीलिंग शायद अगर कुछ होता है ऐसा, तो फिर यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी, आई ऑलवेज विथ यू। एंड वी लास्ट अभी कंक्लूड करने के लिए कोई इशू नहीं है यहाँ पे। आप किसी का कुछ डाउट नहीं होगा तो हम अभी कंक्लूड कर सकते हैं सेशन। So first of all, I would like to say thanks a lot for the Apruti. She has given precious time for us, for the giving of valuable knowledge and guidance for the making a career in the Canada, learn and earn in Canada, because nobody is free right now for others. और यहाँ पे कोई किसी और के लिए कुछ करने के लिए कोई यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होता है, बट शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट, शी फ्रॉम हर साइड शी कॉल्ड मी एंड सर आई वुड लाइक टू टेक वन सेशन फॉर द स्टूडेंट्स which will help to them and which will help to them for the making career in Canada, and they can earn and they can learn in Canada. तो इन्होंने खुद ने सामने से मुझे कॉल किया, so I'm very very happy to see you here. And I I'm hope very happy for this opportunity. It's actually a great thing. So. It's a great moment for us, because when I feel Hemant sir also feel proudly, Daigode sir also feel proudly, because when our students reach at top level, obviously we are feeling कि हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, हम इतना हैप्पी होते हैं। तो टीचर का जो हैप्पीनेस होता है वो स्टूडेंट्स के अचीवमेंट में ही होता है। अभी आपको इतना बड़ा करने के लिए हेमंत सर का भी रोल था, यहाँ पे दाइगोड़े सर भी थे, मतलब उनका तो सबसे बड़ा रोल था क्योंकि वो आपके कॉलेज के सर्स थे वहाँ पे, तो आपको उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया है। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू आकृति जी। अगर फिर से सेशन रखना है तो आप मुझे बिंदास कॉल करके बोल सकते हैं कि आकृति जी अगर हम फिर से सेशन रखना चाहते हैं तो हम फिर से रखेंगे आकृति को, जो थोड़ा सा और परेशान करेंगे, थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए। कोई बात नहीं। थैंक यू आकृति जी। हेमंत सर, नाइकोडे सर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू एवरीवन। किसी को भी कोई भी डाउट हैप्पी फ्रेंडशिप डे ऑल ऑफ यू। यस, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू ऑल। किसी को कोई भी डाउट हो इन डिटेल, किसी को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन डायरेक्टली ask or list down your queries to Sandeep sir. He will forward me and I'll contact you guys. Yes, sure. Thank you. Happy friendship day. Thank you sir. Thank you. Happy friendship day all of you. Thank you sir. Thank you beta. Thank you sir. Thank you sir. Thank you so much to you all to participate. Welcome all of you. Welcome. Okay sir, thank you sir. Okay, welcome.